Good morning students. Today we discuss the exercise of chapter 4 the Mughal Empire. First match the column. Mansab is a rank. Mongol, Uzbek, Sinzodia Rajput related to Mewar, Rathod Rajput related to Marwar, Noor Jahan Jahangir, then Subedar is a governor. Let's see next. Fill the blanks. The capital of Mirza Hakim Akbar Sahib brother was Kabul. Next the 5 Dakhan Sultanates were Birar, Khandesh, Ahmednagar. Next is Birjapur and Golconda. The chart determines a Mansabdar rank and salary. Sawas indicated his number of salarymen. Abdul Fazl, Akbar's friend and counselor, helped him frame the idea of Sulh-e-Kul so that he could govern a society composed of many religion, culture and caste. Next question. What were the central province under the control of Mughals? Let's see answer. Lahore, Panipat, Delhi, Mathura, Agra, Ajmer, Marwar, Mewar, Dakhan and Chittor. Move on next question. What was the relation between Mansabdar and Jagir? Mansabdar और जगीर थे उनमें क्या संबंध था? Mansabdar received their salaries as revenue assignments called Jagirs. Mansabdar did not actually reside in or administer their Jagir. They served in some other parts of the country while the revenue was collected for them by their servants. यानी कि जो मनसबदार थे वो अपना रेवेन्यू या टैक्स इकट्ठा करते थे जागीर से, लेकिन वो जागीर के ऊपर राज नहीं करते थे, वो किसी कंट्री के अन्य पार्ट में जाके देश के लिए सेवा करते थे। देन जो सर्वेंट्स होते थे वो उनके लिए वहां से रेवेन्यू इकट्ठा करते थे। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द रोल ऑफ जमींदार इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन? कि जो जमींदार थे उनका मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रोल था? रोल ऑफ जमींदार इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। जमींदार वर लोकल हेडमैन ऑफ विलेज और पावरफुल chieftains appointed by the Mughal Empire। तो वे एक विलेज के हेड थे। They played a role of source in running of administration of the Mughals। जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन था उसको चलाने में एक संसाधन का काम करते थे। They collect tax on the produce of peasantry which was the main source of income available to Mughal rulers। तो वो टैक्स इकट्ठा करते थे मुगल्स के लिए। In some areas जमींदार exercise a great deal of power and sometimes जमींदार and peasant of the same caste lied a rebelling against मुगल अथॉरिटी। तो कई बार जो जमींदार थे वो सेम कास्ट के जो किसान थे उनसे मिलकर मुगल अथॉरिटी के खिलाफ रेबलिंग्स या फिर विद्रोह भी कर देते थे। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वर द डिबेट्स विद रिलीजियन स्कॉलर्स रिपोर्टेड इन द इंफॉर्मेशन ऑफ अकबर्स आइडिया ऑन गवर्नमेंट? यानी कि अलग अलग जो रिलीजन के स्कॉलर्स से उनसे चर्चा करवाना अकबर के लिए कितना फायदेमंद था? लेट्स सी द आंसर। अकबर्स इंटरेक्शन with people different faith made with realize that religious scholars who empathize ritual and dogma were often bigot। यानी कि जो डिफरेंट रिलीजन के स्कॉलर्स थे वो अच्छी तरह से उनको समझा सकते थे रिलीजन के बारे में। द टीचिंग बाय डिफरेंट रिलीजन स्कॉलर्स क्रिएटेड डिवीजन एंड डिसहार्मनी अमंग हिज सब्जेक्ट। तो उन्हें आप जो अपना अपना रिलीजन था उसके बारे में गहराई से जानकारी थी। देन दिस लेड टू द आइडिया ऑफ सुलह-ए-कुल और यूनिवर्सल पीस which means to tolerance and not to discriminate between people of different religion in his realm। यानी कि जो यह उसका आइडिया सुलह कुल की ओर जाता था जो कि उसके एडमिनिस्ट्रेशन में एक पीस का काम करता था। They framed a vision of governance around the idea of सुलह कुल focused on a system of ethics, honesty, justice, peace which was universally applicable। तो इसकी वजह से वह अपने सिस्टम के अंदर honesty, justice और जो पीस था उसे स्थापित कर पाया। Next, the system of governance was later followed by जहांगीर एंड शाहजहां as well। तो उसी का जो चलाया गया सिस्टम उसके बाद जहांगीर और शाहजहां ने भी फॉलो किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डिड द मुगल एम्फेसिस देयर तैमूर एंड नॉट देयर मुगल डिसेंट? यानी कि जो मुगल थे वो अपने आप को तैमूर के वंशज अखवाना पसंद करते थे ना कि मंगोल के। तो ऐसा क्यों था? द मुगल्स एम्फेसिस देयर मंगोल डिसेंट बिकॉज गजनी खान्स मेमोरी वाज एसोसिएटेड विद द मिसकेयर ऑफ इनमेरेबल people। It was also linked with the Uzbek, their Mongol competitors। On the other hand, they were proud of their Temur ascendancy, not least of all because their great centers had captured Delhi in 1398। They also celebrated their generally pictorially each rulers getting a picture made of Temur and himself। तो वे ऐसा मानते थे कि जो गजनी था उसने बहुत खून खराबा किया था और इसी कारण वह उसका वंशज कहलाना पसंद नहीं करते थे। देन अदर हैंड जो तैमूर थे उन्होंने दिल्ली पर कब्जा किया था, दिल्ली को कैप्चर किया था और इसी कारण वो जो तैमूर थे उनके वंशज अखवाना
पसंद करते थे और उनके साथ उनकी पिक्चर्स वगैरह भी थी। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इंपॉर्टेंट वाज द इनकम फ्रॉम लैंड रेवेन्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ मुगल एम्पायर। जो टैक्स लैंड रेवेन्यू से मिलता था वो मुगल एम्पायर के लिए कैसे फायदेमंद था या कैसे उनको स्टेबल कर पाया। द इनकम फ्रॉम लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ मुगल एम्पायर। तो वो उनका मेन सोर्स था इनकम का। द मुगल एम्पायर वाज वेरी लार्ज एंड देयरफॉर रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर हग अमाउंट ऑफ फाइनेंस इज नीडेड विद कम्स फ्रॉम द रेवेन्यू। तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए बहुत सारे लोग थे, तो उनको जो पे थी वो रेवेन्यू से दी जाती थी। द लैंड रेवेन्यू आल्सो इंपॉर्टेंट सैलरीज ऑफ द सोल्जर एंड ऑफिशियल एंड वेलफेयर वर्क्स फॉर द कॉमन्स। तो इसके साथ साथ जो सोल्जर थे उनको भी इसी से सैलरी दी जाती थी। लैंड रेवेन्यू प्लेड ए क्रूशियल रोल्स इन इकोनॉमी एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। तो ये एक इकोनॉमी में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता था। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज इट इंपॉर्टेंट फॉर द मुगल्स टू रिक्रूट मनसबदार फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड एंड नॉट जस्ट तुरानी एंड ईरानी। तो जो मुगलों ने मनसबदार रखे थे वो हर बैकग्राउंड से रखे थे, क्यों? इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर मुगल्स टू रिक्रूट मनसबदार फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स एंड नॉट जस्ट तुरेंस एंड ईरानीज इन ऑर्डर टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू एम्पायर। ये उन्होंने इसलिए किया ताकि जो उनका साम्राज्य है उसके अंदर स्टेबिलिटी बनी रहे, क्योंकि उनके साम्राज्य के अंदर अलग अलग कास्ट और रिलीजन के पीपल थे। मोर ओवर द प्रॉब्लम ऑफ कॉमन फोक्स वुड बी अंडरस्टूड बेटर बाय द पीपल लिविंग देयर। तो सेम कास्ट का जो मनसबदार था वो सेम कास्ट के पीपल थे, उनकी प्रॉब्लम अच्छे से डिफाइन कर सकता था। दे केम हर टू रूल एंड मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री एज वेल एज रिस्पेक्ट इट। दे रिक्वायर्ड मनसबदार फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड। तो जो डाइवर्सिटी थी उसके अंपायर के अंदर उसमें बैलेंस बनाने भी में ये इंपॉर्टेंट थे। दे आल्सो डोंट वांट द पीपल बी रेबल अगेंस्ट देम ऑन द इश्यू ऑफ बीइंग ए कॉमन मनसबदार और प्रेसिडेंट और तुरेंस और ईरान। यानी कि जो पीपल्स थे वो उनकी अंपायर था उसके अगेंस्ट कोई रेबल ना कर दे, इसीलिए भी वो अलग अलग जो कास्ट के मनसबदार थे उसे रिक्रूट करते थे। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक द मुगल एम्पायर इंडिया टुडे आल्सो मेड अप मनी सोशल एंड कल्चरल यूनिट्स, डज दिस पोज अ चैलेंज टू नेशनल इंटीग्रेशन। क्या आज भी मुगल एम्पायर की तरह हमारा जो सोशल सिस्टम है या जो हमारी कंट्री है वो अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड है और ये आज भी जो नेशनल इंटीग्रेशन है उसे चैलेंज करता है। टुडे इंडिया फॉलो द कल्चर ऑफ ट्रेडिशन ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आज हमारा देश है वो विभिन्नता में एकता को बढ़ावा देता है। पीपल लिविंग देयर आर यूनाइटेड बाय द हार्ट एंड लव द डाइवर्सिटी ऑफ देयर ओवन कंट्री। दे कंसिडर दिस एज देयर ओवन मदरलैंड। मोर ओवर दे गेट राइट टू चूज देयर ओवन गवर्नमेंट एंड फ्रीडम टू डू व्हाट दे वांट विदाउट हार्मिंग एनीवन, which was not be the case under Mughal Empire. It do face some challenges, but it is like a drop in the sea. So India is now integrated country with diversity as its USP and never pose a challenge to national integration. यानी कि आज भी इंडिया के अंदर जो अलग अलग कास्ट है उसके पीपल रहते हैं, लेकिन जो सभी पीपल हैं उनको बराबर में सरकार चुनने का हक है और आज भी यह दिल से और प्यार से मिलकर इंडिया के अंदर रहते हैं। लेट्स सी इन हिंदी मीडियम, मनसब एक पद था, मंगोल, उज्बेक, संसोदिया राजपूत, मेवाड़, राठौर राजपूत, मारवाड़, नूरजहां जहांगीर, देन सूबेदार इज ए गवर्नर। सी द नेक्स्ट, रिक्त स्थान भरें। वी डिस्कस इन इंग्लिश सो वी सी द आंसर हेयर। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल राज्य के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रांत दिल्ली एंड आगरा। मनसबदार और जागीर में क्या संबंध था? मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने के लिए भूमि के रूप में पाते थे जिन्हें जागीर कहते थे, यानी कि जिनसे वो अपना टैक्स या वेतन लेते थे उसी को जागीर कहते थे और वो जागीर के ऊपर प्रशासन नहीं करते थे, उसके पास अपनी जागीरें केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए इकट्ठा करके देते हैं जबकि वह स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवा करते थे। सीधा नेक्स्ट, मुगल प्रशासन में जमींदार की क्या भूमिका थी? तो जमींदार से उन्हें राजस्व मिलता था। देन अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुल यानी जमींदार को अपना राजस्व देते थे, तो जमींदार को जो छोटे किसान थे वो राजस्व देते थे। देन यह राजस्व जमींदार आगे प्रशासन को जमा करवाता था। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासन संबंधी अकबर के विचारों के निर्माण में धार्मिक विद्वानों से होने वाली चर्चाएं कितनी महत्वपूर्ण थी? यानी कि उसने अलग अलग जो रिलीजन के स्कॉलर थे वो क्यों रखे थे और उनकी जो चर्चाएं होती थी वो इंपॉर्टेंस क्यों थी? धार्मिक चर्चाओं और परिचर्चाओं में अकबर को ज्ञात हुआ कि धार्मिक कट्टरता प्रजा के विभाजन
विभाजन और असमंजस्य के लिए उत्तरदायी होती है। यह अनुभव अकबर को सुलह-ए-कुल या स्वतंत्र शांति के विचार की ओर ले गया। इन चर्चाओं से उसे प्रशासन की ओर स्पष्ट सोच प्रदान की, जिसे केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल दिया, और इसी को आगे उनके जो आने वाले शासक थे उन्होंने अपनाया। नेक्स्ट, मुगलों ने खुद को मंगोल की अपेक्षा तैमूर के वंशज होने पर क्यों बल दिया? क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी, और दूसरी तरफ जो मुगल थे वह तैमूर के वंशज होने का गर्व अनुभव करते थे, क्योंकि उन्हें इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था। नेक्स्ट, भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय मुगलों के स्थापत्य के लिए कहां तक जरूरी थी? तो भू राजस्व की राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। समस्त प्रशासनिक इकाइयां इस आय द्वारा, या जितने भी राज्य के काम थे वो इसी से पूरे किए जाते थे। राज दरबार के कर्मचारियों, प्रशासनिक कर्मचारियों का वेतन आदि इसी खर्च पर चलता था। मुगलों के लिए केवल तुर्की या ईरानी ही नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण थी? क्योंकि मुगलों के साम्राज्य में जैसे जैसे विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित हुए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना प्रारंभ किया, जिससे मुगलों को शासन का विस्तार करने में और उन्हें लंबे समय तक स्थापित करने में सहायता मिली। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य के समाज की तरह ही वर्तमान भारत आज भी अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक इकाइयों में बटा हुआ है। क्या यह राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक चुनौती है? तो मुगल साम्राज्य के समाज में कई धर्म और जाति के लोग रहते थे। यही स्थिति वर्तमान भारत में भी है। यहाँ पे भी अलग अलग जाति और विविधता के लोग रहते हैं, जिनका खान पीन, त्योहार सब अलग अलग है, लेकिन इससे भी भारत की जो सामाजिक और राष्ट्रीय एकता है उसमें किसी प्रकार की चुनौती नहीं है, क्योंकि सभी मिलजुल कर रहते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एनी क्वेश्चन और सजेशन कमेंट में।